my dear students. Till now we complete so many lectures and so many topics in science. Now, the next point that we have to learn, that is reproduction. Now, reproduction is a type of point which is included in so many standards. Then, in lower grades, that is reproduction in plants are there, reproduction in flowers are there, and as and when you're going in higher grades, there are reproduction in human beings also, and types of reproduction are there. So in today's lecture, today's video, we have to complete all the type of reproduction in plant, in flower, in human beings, whatever it was, and a type of reproduction are there. This all we complete in this portion. Okay, so here is a part 1. Later on I'll upload 4 part of this kind of videos. In that 4 part we complete all the process of reproduction. Okay, so we are starting. So first of all, what is reproduction? So reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species. Then so reproduction is nothing else but a type of thing by which you can produce a new copy of the same species. Now why reproduction is necessary? So it is necessary for the survival and a increase of population. Then for the survival and to generate more population, reproduction is required. Now if organism do not reproduce, their population decrease and species will become extinct. देन कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो लेटर ऑन क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल जिसकी भी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिनके भी अंदर रिप्रोडक्शन ना हुआ तो उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, लेटर ऑन एक्सटेंड हो जाएगी, उनका दुनिया में कुछ नाम निशान नहीं रहेगा. नाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, कि भाई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी सेम कार्बन कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं. So, the DNA molecule in the chromosome in a nucleus is responsible for the transfer of characters from parents to the offspring. कि भाई कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस करवाने में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करवाने के लिए द मेन थिंग दैट इज न्यूक्लियस. नाउ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपी ऑफ DNA विच सेपरेट इनटू 2 सेल. कि भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपका DNA खुद के जैसी सेम 2 कॉपी बनाएगा, एक में से 2 कॉपी जनरेट करेगा एंड दैट 2 ऑफ अ सेम. नाउ द DNA कॉपी विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. नाउ द 2 DNA कॉपी विच इज न्यूली फॉर्म, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. कि दोनों सेम होगी बट 100% आइडेंटिकल नहीं होगी. दैट्स वाई आप आपके पेरेंट्स के बच्चे हो, राइट, बट लुक में आप उनसे अलग हो, बिहेवियर में आप उनसे अलग हो. दैट इज बिकॉज ऑफ योर DNA. खून वही है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, DNA रिपोर्ट्स करवाओ वो भी मैच आती है, बट द कैरेक्टर्स दैट आर नॉट सेम, आइडेंटिकली ईच अदर नहीं होते, मतलब एक दूसरे की सेम टू सेम कॉपी नहीं होते, बाकी होते उनके ही हो. नाउ सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. की इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं दे हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज. और इसके थ्रू ही नई नई स्पीसीज जनरेट होती रहती है. एज एंड व्हेन जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा नई नई स्पीसीज जनरेट होती जाएगी. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि भाई इन वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है. सो दिस इज अ कॉमन पॉइंट कि जिनके अकॉर्डिंग हमें पता है कि भाई वेरिएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अलग अलग स्पीसीज होगी दुनिया के अंदर, तभी आप पहचान पाओगे सबको. बाकी तो अगर सब एक जैसे दिखता है देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड यू कैन नॉट क्लासीफाई द डिफरेंस बिटवीन द rest of the people. Okay, so that's why variation is important. Okay, so these are the important point of variation. You guys can read it, there is nothing etc. Now after completing this we have to shift on the main point, and that is type of reproduction. Now what is the type of reproduction and how many types of reproduction are there? So there are mainly 2 type of reproduction in living organism, and they are asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is asexual reproduction? So asexual reproduction is a type of reproduction in which only single parent is required. कि जिनमें सिर्फ एक ही parent की requirement हो और reproduction हो जाए, new copies generate हो जाए, that is asexual reproduction. Now the sexual reproduction is a type of reproduction in which
two parents are required to produce a new daughter cell or else a new organism. देन कि भाई ऐसा रिप्रोडक्शन जिनके अंदर दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, दो बॉडीज़ की ज़रूरत होती है नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. कि अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लो, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर डिवाइड इन सो मेनी पार्ट्स एंड दे आर फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, spore formation, vegetative propagation, etc. Okay. So first we are starting with the first point, and that is fission. Now fission is an asexual reproduction by which a unicellular organism divide and form two or more new individual. Then so fission is a type of asexual reproduction by which organism will produce two copy of themselves. Now fission have two types. Fission के भी दो type है. First one is binary fission. Second one is multiple fission. Now, binary fission, that means a type of fission in which two copies are produced, two daughter cells are produced. And multiple fission, as the name suggests, a type of fission in which multiple daughter cells and multiple organisms will generate. Now, by word binary fission, in this method, an organism divides and form two individual. First, the nucleus dividing into two nuclei. Then and cytoplasm divided and forms two daughter cell. कि भाई इनमें क्या होगा कि भाई ऑर्गेनिज्म दो की कॉपी में डिवाइड होंगे. सबसे पहले उनके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा, दैट न्यूक्लियस डिवाइड इटसेल्फ, एंड आफ्टर द न्यूक्लियर डिवाइड्स एंड सेपरेट, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म विल डिवाइड एंड फॉर्म अ टू डॉटर सेल. यहाँ पे अमोइबा का एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है. दैट इन फर्स्ट वन दैट इज अमोइबा. देन सेकेंड इमेज में क्या हो रहा है, अमोइबा का न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है. इन थर्ड पार्ट द न्यूक्लियस आर सेपरेटेड. इन फोर्थ पार्ट साइटोप्लाज्म आर गेटिंग डिवाइडेड, कि साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया. इन फिफ्थ वन द बोथ सेल्स आर टोटली डिवाइडेड बट दे आर अ वन जॉइनिंग पॉइंट, एंड इन लास्ट दैट जॉइनिंग पॉइंट विल ऑल्सो कट इट डाउन एंड टू अमोइबाज आर generated. So from one organism two daughter cells are produced, so that is a binary fission. Then amoeba, paramecium, leishmania are the examples in this category. Now multiple fission. So in this method one organism divides into many daughter cell. For example plasmodium, that is a malarial parasite. कि जब आप मल्टीपल फिजन की बात कर लो तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम पे बहुत सारे डॉटर सेल्स जनरेट करेगा. हियर इज द एग्जांपल कि प्लाज्मोडियम का एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि एक सेल में से एक साथ एन नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जनरेट होते हैं और एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो दैट इज अबाउट फिजन. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज बडिंग. नाउ बडिंग एज अ नेम सजेस्ट, इसके अंदर क्या होगा, बर्ड्स बनेंगे और वो बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा. दैट्स वाई द मेथड इज बडिंग. नाउ इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. कि इनमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक साइड पे बर्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. द बर्ड देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फिर क्या होगा, वो बर्ड खुद एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो होगा. इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. फिर क्या होगा, लेटर ऑन वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा और खुद मैच्योर होके सस्टेन करेगा. द एग्जाम्पल आर हाइड्रा एंड ईस्ट. एक प्लांट का एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है. कि अगर आप हाइड्रा की बात कर लो तो द ग्रीन वन दैट इज द इमेज ऑफ हाइड्रा एंड द ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दैट इज ऑफ ईस्ट. तो हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा का जो प्लांट है उसकी एक साइड से छोटा सा बर्ड जनरेट होगा. फिर उस वो बर्ड क्या होता है, रहते रहते रिप्रोड्यूस होता है. देन फर्स्ट में देखो बर्ड जनरेट होता हुआ दिखा, सेकेंड में वो बर्ड मैच्योर हो रहा है, ग्रो हो रहा है. आफ्टर दैट थर्ड इमेज में क्या होगा, वो जब मैच्योर हो जाएगा तो वो ओरिजिनल प्लांट से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड एट द एंड जब वो डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो वो सेपरेटली इंडिविजुअल सस्टेन करेगा. एट अ सेम विद द नेक्स्ट इमेजेस ऑफ ईस्ट. कि सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, एक एंड पे बर्ड बनना स्टार्ट हुआ तो न्यूक्लियस ने खुद को डिवाइड किया और फिर उस न्यूक्लियस में से
ऐसे 1 on 1 बर्ड क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे, और इस तरीके से फिर बर्ड की एक अलग अलग चेन बनती जाएगी। आफ्टर दैट ये सारे बर्ड्स मैच्योर हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएंगे। कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड पोर्शन इज रीजनरेशन। नाउ एज अ नेम सजेस्ट, रीजनरेशन मतलब एक की एक चीज में से रीजनरेट होते रहना, दैट इज रीजनरेशन। नाउ इन दिस मैथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी इफ ऑर्गेनिज्म इन दिस मैथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी if or else the organism if cut or broken can develop into a new individual। देन कि भैया एक ऐसा टाइप है, ऐसी मेथड है जिसमें क्या होगा कि भाई ऑर्गेनिज्म का बाय चांस गलती से अगर कोई बॉडी पार्ट कट हो गया तो भी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो वापस से उस पार्ट को क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। देन ऐसे मोस्टली वो नाम भूल गई मैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चिपकली को। देन तो चिपकली के पास ये कैपेसिटी होती है कि अगर आप वो उसकी पूंछ कट जाए ना तो वापस से वो जनरेट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इनको ऑटोपोटेंसी भी बोला जाता है, दैट आर ऑटोपोटेंसी, कि भाई ऑर्गेनिज्म अगर कट हो जाए तो उनमें से वापस नई इंडिविजुअल कॉपीज बन सकती है। यूर इज अ एग्जाम्पल, ये ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो उसको उनकी बॉडी को 3 पार्ट में कट कर दिया, एक ऊपर का पोर्शन, एक सेंटर का पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन। अब इस हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, इस हर एक पोर्शन के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो ये पार्ट क्या करेंगे, उनके पास जितना बॉडी पार्ट नहीं है उतना बॉडी पार्ट क्या करेंगे, थोड़े ही टाइम में वो पूरे बॉडी पार्ट वापस बना लेंगे और एक में से 3 कॉपीज बन गई। जब आप जितने पार्ट में कट करोगे उतने पार्ट में ये कॉपीज बनती जाएगी। एट द सेम वे द नेक्स्ट वन इज हाइड्रा, कि भाई हाइड्रा को क्या होगा कि भाई हाइड्रा को आप सेंटर में से कट कर दोगे तो अपर पार्ट लोअर पार्ट, तो वो भी जितना पोर्शन आपने कट किया है उतना पोर्शन वो इजीली जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज रीजनरेशन। After that, the next point is fragmentation. So in this method, the body of a simple multicellular organism break up into a small piece on maturation and each fragment develop into a new individual. Then अब fragmentation में भी क्या होगा, उनके टुकड़े हो जाएंगे। बट याद रखो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन अलग है। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, वो जो टुकड़े हुए हैं वो वापस से उनके पास जितना बॉडी पार्ट नहीं है उनको ग्रो कर लेंगे और एज अ न्यू इंडिविजुअल वापस बन जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो सेम स्पीसीज है, एक की एक स्पीसीज, वो अपने आप को लेटर ऑन टुकड़े कर करके डिवाइड करती जाएंगी और वो जो टुकड़े हैं वो वापस से अपने आप मैच्योर होके एज अ न्यू इंडिविजुअल वर्क करेंगे। द एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। यहाँ पे आपको स्पायरोगायरा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और जैसे न्यूक्लियस है, उनके सेप्टाज है एंड उनके क्लोरोप्लास्ट है। स्पायरोगायरा हैज ग्रीन इन कलर, देन बिकॉज दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट इन दैम। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्पायरोगायरा को सेंटर में से कट कर दोगे, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स कर देना, टुकड़े कर देना। तो अगर आप उनके टुकड़े भी कर दोगे देन ऑल्सो दे कैन लीव। ये सेम कैरेक्टरिस्टिक किस में होती है, अर्थवर्म के अंदर, कि आप अर्थवर्म को कट भी कर दो तो वो अर्थवर्म क्या करेगा, इजीली लेटर ऑन, उनके मुंह 2 साइड होते हैं, आपको कहीं से भी कट कर दो वो 2 इंडिविजुअल भी जिंदा रह सकते हैं। देन तो ये 2 ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने की कैपेसिटी एक्चुअल में हुई किसकी, दैट इज रीजनरेशन। ये जो अर्थवर्म वाला एग्जाम्पल है दैट इज रीजनरेशन। डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज spore formation. In this method, structures called spongia produce tiny cell called spores। कि भाई ऐसे organisms या तो फिर ऐसे प्लांट जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं उनके अंदर स्पॉन्जिया करके एक बड जैसा होता है जिनके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे सेल जिनको बोला जाता है स्पोर्स। तो ये फॉर्म होते, इनके थ्रू क्या होगा, when the spores come in contact with a moist surface it develop into a new इंडिविजुअल। की जब ये जो सेल है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे और इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, फेवरेबल कंडीशन में आएंगे, वो अपने आप में से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। हियर आर द एग्जाम्पल राइजोपियस म्यूकर एंड पेनिसिलियम। नीचे आपको इमेज भी दिखाई हुई कि भाई स्पॉन्जियम कैसा होता है और उनके अंदर स्पोर्स किस तरीके से होता है। डन। देन द लास्ट वन दैट इज 6th one, vegetative propagation. Now vegetative propagation that means कि भाई प्लांट का कोई एक ऐसा पार्ट
जिनमें से नया पार्ट ग्रो हो जाए, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ. कि भी ये एक ऐसा पार्ट है जिनके अंदर प्लांट के ही कोई पार्ट में से नया प्लांट क्या होगा, जनरेट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर रूट की बात कर लो तो रूट में से जो रूट में से जो न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो प्रोपोगेशन होता है, दे आर दहालियाज, स्वीट पोटैटोस. देन कि वो रूट में से ग्रो होता है, तो रूट के अंदर उनके रूट के पार्ट्स में से नए नए प्लांट ग्रो होते जाएंगे. अब स्टेम में से जो जनरेट होता है दैट इज पोटैटो एंड जिंजर, की वो स्टेम में से ग्रो होता है. एंड द लीफ दैट इज ब्रोफाइलम एंड बेगोनिया. ये ऐसे प्लांट है जो लीव्स के ऊपर से ग्रो होते हैं. यहाँ पे आपको बाजू में इमेज भी दिखाई हुई है कि कैसे होगा. उनका जो लीफ है उसकी जो एज होती है उस एज के ऊपर से नए प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. और फिर जो लेफ्ट साइड पे इमेज है उतना ग्रो हो जाए, फिर वहाँ से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहाँ से फिर नया प्लांट ग्रो होता है. प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव propagation produce flower and fruits earlier than those produced from seed. कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस हुए होंगे उनके अंदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी आता है. जिनको आपने सीड में से प्रोड्यूस किया हो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट आने में टाइम लगता है. बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसे लिव्स के ऊपर से प्रोड्यूस हुए और नीचे गिर के जो बड़े हुए हैं उनके अंदर फ्लावर्स एंड सीड्स जल्दी से आते हैं. It also help in the propagation of plant which do not produce seeds like rose, jasmine and banana. कि इस टाइप का जो प्रोपोगेशन है वो कहाँ पे हेल्प करता है, रोज, जैस्मिन, बनाना, इन जो से प्लांट के अंदर भी प्रोपोगेशन करवाने में हेल्प करता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. ये सेम टाइप का प्रोपोगेशन आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हो कि कोई प्लांट है उसकी एक स्टेम काट के आप वापस से उसको ग्रो करने रख दो, या तो ग्राफ्टिंग कर दो, लेयरिंग कर दो. इनके अकॉर्डिंग भी ये प्रोसेस आप कर सकते हो. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.